ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ میں انڈسٹریل زون کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لاڑکانہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، چاہے وہ مزدور ہو یا کسان، پاکستان کے عوام کے لیے اپنے منشور کے تحت خدمت کی اور عوام کے لیے روزگار کے مواقع اور ہمارا معیشت کو ترقی کرنے کے لیے وہ مواقع پیدا کیے ہیں جس سے پاکستان کا فائدہ ہوا ہے۔ ہم نے جو یہ انڈسٹریل زون اور اکنامک زون کا سلسلہ سندھ میں شروع کیا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مقامی انڈسٹریز ہے، کامرس ہے، بزنس ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا عوام کو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے خیرپور اکنامک زون جو شروع ہوا تھا وہ کتنا اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آج جو لاڑکانہ میں الحمدللہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام ہو رہا ہے، وہ ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے جہاں ہم انشاءاللہ تعالی جو سی پیک کا منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا، جس کا روٹ یہاں سے ہی گزرتا ہے اور ہمارا رتو دیرو خزدار کا جو کنیکٹیوٹی ہے اس کا فائدہ بھی حاصل کرے گا، اور باقی پاکستان کو پنجاب سے کنیکٹ کرنے کا جو فائدہ ہے اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ کچھ سالوں پہلے یہ منصوبہ صرف کاغذوں پہ تھا، صرف ایک پلان تھا۔ جب میں یہاں پہنچ رہا تھا میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس کوالٹی کا انفراسٹرکچر یہاں بنایا گیا ہے، کس کوالٹی کا ہم نے جو روڈز ہے، جو لائٹنگ ہے، جو فیسلٹیز ہے، چاہے وہ آپ کا ریکریشنل سینٹر ہو، مسجد ہو، ہاسپٹل ہے، سارے فیسلٹیز موجود ہے۔ اب ہم نے اپنے بزنس سیکٹر کے ساتھ، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم یہاں کے عوام کو اور ان کو یہ سہولت فراہم کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار رہا ہے اور جو مختلف جماعتوں کا اور حکومتوں کا طریقہ کار رہا ہے وہ الگ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو طریقہ ہے انڈسٹریز کے ساتھ ڈیل کرنا، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو یا مزدور ہو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 2 سال میں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو، اور ہمارا جو انفلیشن ہے، ہمارا انفلیشنری ریٹ ہے، وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے آگے ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جیسے یہ حکومت آیا ہے انہوں نے ہمارا بزنس کمیونٹی کو جس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، جیسے جو بھی بزنس کرتا ہے، جو بھی انڈسٹری چلاتا ہے تو وہ چور ہے، اور ان کے پیچھے چاہے وہ ایف پی آر ہو، زبردستی وہ جو سی این آئی سی کارڈ کا جو پالیسی تھا ان کو اپنا نہیں سمجھ کے، ایک دشمن سمجھ کے اس طریقے سے سلوک کیا گیا، اور ایک سوچ کے ڈنڈا کے ساتھ وہ ٹیکس نکال سکتے ہیں، ڈنڈا کے ساتھ وہ معیشت چلا سکتے ہیں، اور ڈنڈا کے ساتھ وہ ملک بھی چلا سکتے ہیں۔ وہ ایگزامپل اور اس کا نتیجہ، اس کا جو اثر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک الگ آؤٹ لک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔
हमने बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, वो फैसिलिटीज़ देना है ताकि उनका इंडस्ट्री फाल हो, उनका बिजनेस फाल हो और फिर हमारा मुल्क का मीशत को फ़ायदा हो। सिंध हुकूमत ने अपना एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि जिस तरीके से हमने बाकी सूबे के मुकाबले में और वफाक का FPR के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स जनरेट किए हैं, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। और हमने वो कैसे किया? हमने डंडा इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने कंपेटिटिव टैक्स रेट्स दिए। मसलन जैसे हमारा सेल्स टैक्स का रेट है वो बाकी सूबे से कम, और हमने जिनसे हमने टैक्स लेना था उनको क्रिमिनल नहीं समझा, उनको कोक्स करके फैसिलिटेट करके आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट के अंदर लेकर आए और सिंध का टैक्स रेवेन्यू जनरेशन का जो प्रोग्रेस है वो भी आपके सामने है। तो ये एग्जाम्पल्स है पाकिस्तान की रियासत को चलाने और पाकिस्तान की मीशत के चलाने कि या अब जैसे वफाक करते आ रहा है और जैसे PTI की जमात आप इस तरीके से हुकूमत को और रियासत को मीशत को चला सकते हैं, या हुकूमत को वो अपना ज़िम्मेदारी अपना के, अपना ज़िम्मेदारी समझ के बिज़नेस कम्युनिटी का भी हाथ पकड़ना है, इंडस्ट्री का भी, ताजिर का भी हाथ पकड़ना है, और साथ साथ वो जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो हमारा मज़दूर है, जो हमारे काम करने वाले हैं, उनके लिए भी ख्याल रखना, उनके हुकूक का भी ख्याल रखना। हमने अभी कुछ दिन पहले सखर में एक मज़दूर सिटी का इफ्तिताह किया था, जो कि मज़दूरों के लिए घर का और फ्लैट का एक मंसूबा था। और अब जो यहाँ लड़काना में इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि CM साहब हमारे इंडस्ट्रियल जोन के लिए वो इंसेंटिव्स का जो तरीक़ेकार है, जो इंसेंटिव्स होते हैं वो ज़रूर देंगे, ताकि लोकल ख़ास तौर पे हमारा लोकल जो कॉमर्स का चेंबर है और हमारा लोकल इंडस्ट्रीज़ है, रीजनल इंडस्ट्रीज़ है, उनको वो मौका मिले कि ये प्रीमियम फैसिलिटीज़ का वो फ़ायदा उठा सके। हमारा ज़राअत पाकिस्तान की मीशत की बैकबोन है और सिंध में हमारे ख़ास तौर पे यहाँ हम ज़राए मीशत को बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो चावल का प्रोडक्शन है, हम पूरा सिंध में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। आप जानते हो कि लड़काना के जो अमरूद है वो पूरी दुनिया के सबसे ज़बरदस्त अमरूद होते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो यहाँ एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं उनके लिए ये भी मौका होगा कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ कायम करें, ताकि इन इंडस्ट्रीज़ को, इस सेक्टर को वो फ़ायदा पहुँचाए। और हम बिज़नेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि आपके सामने जैसे बाकी मुल्क के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ख़ास एक किरदारकशी की गई है और हमें एक तरीके से पेश किए गए हैं। हम ज़रूर अवाम दोस्त है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम सनत के और बिज़नेस के दुश्मन हैं। हम आपके भी दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि हम मिल के काम करें, हम मिल के साथ आगे बढ़े। और हुकूमत ने जिस तरीके से वफाक ने इस मुल्क के अवाम को, ख़ास तौर पे इस सूबे के अवाम को लावारिस छोड़ा है इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल के दौरान, हमने अब मिल के काम करना है। सिंध हुकूमत ने और यहाँ के मकामी जो बिजनेसेस है और इंडस्ट्रीज़ है, हमने मिल के काम करने हैं ताकि हम अपने अवाम के मुआशी सूरत हाल का ख्याल रख सकते हैं। और आई लुक फॉरवर्ड कि इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत आपके साथ मिल के आगे काम करेगा और इस इंडस्ट्रियल जोन का फ़ायदा लड़काना के अवाम के लिए ख़ास तौर और इस सूबे के अवाम के लिए आगे जाके पूरे मुल्क को नज़र आएगा कि इसका जो ना सिर्फ स्ट्रेटिजिक लोकेशन है मगर जो फैसिलिटीज़ है वो हमारा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए,
हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बहुत अहम मौका होगा। वफाकी हुकूमत ने जो वादा किया था कि वो 1 करोड़ जॉब्स देंगे और 50 लाख घर बनाएंगे, वो हमने आज तक नहीं देखे हैं। लेकिन सिंध हुकूमत कम वसाइल से, कम रिसोर्सेज से, मगर ज़्यादा मेहनत से आप अपने अवाम के खिदमत करने की कोशिश कर रही है, और साथ साथ हम अपने हकूक़ का जदोजहद भी लड़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, सीएम साहब ने तो हमारा गैस का राइट्स के इशू पे बात किया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके हकूक़ के लिए, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो NFC अवार्ड हो, चाहे वो हमारे जज़ायर हो, हमारा आइलैंड्स हो, जो भी हमारे अपने इश्यूज़ है, हर सतह पे और हर फोरम पे हम इनके लिए और आवाम के लिए लड़ते रहते हैं। हुकूमत के जो वज़ीर है वो भी मानते हैं कि अगर इमरान खान के रास्ते में कोई रुकावट है, उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के सामने कोई रुकावट है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और हमारा सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को टारगेट किया गया है मीडिया के थ्रू और नैब के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानता है कि हम कैसे इन साजिशों का मुकाबला करें, और हम ये भी जानते हैं कि सियासत कैसा होता है, और हम ये भी जानते हैं कि गैर जमहूरी ताकतों को हुकूमत से कैसे निकालना है। और जहाँ हम समझते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे अवाम के लिए जो इस वक्त तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी गुर्बत और तारीख़ी बेरोज़गारी का बोझ उनको इस नालायक और नाअहल हुकूमत की वजह से उठाना पड़ रहे हैं। इनकी नालायकी का बोझ, उनकी बिजली की बिल, इनकी गैस की बिल, इनकी दवाइयों की बिल, इनके खाने पीने के अशिया की बिल की सूरत में पाकिस्तान की अवाम उठा रहे हैं। तो ये वजह है कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हैं। PDM के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम इस नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को घर बेचना चाहते हैं और एक ऐसा अवामी हुकूमत लेकर आने चाहते हैं जो अपने अवाम को रिप्रेजेंट करे, जो अवाम की वजह से इक़्तिदार में आए। जब एक अवाम की वजह से हुकूमत बनती है तो फिर अवाम की ख्याल रखा जाता है, अवाम के मसाइल का हल करने की कोशिश की जाती है। जब किसी और की वजह से आप हुकूमत में आते हैं तो आप उनकी फ़िक्र करते हैं और उनका मसाइल हल करने के हमेशा लगे हुए होते हैं। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी, आइनी, कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर बेच देंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आइनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के ख़िलाफ़, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के ख़िलाफ़, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। रब इंशाल्लाह ताला हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे। फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे, उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। और जितना आजकल हुकूमत के वज़रा बयानबाजी कर रहे हैं, ऑपोजिशन के दरमियान दरार पैदा की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी जो फ़िक्र है, जो डर है, वो पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने दिखा रहे हैं कि ऐसे ना हो कि पूरे पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें ये फ़ैसला करें
کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، اس لیے جب ہم حملہ کرتے ہیں تو کٹپتلی کو کم از کم گھر جانا پڑے گا. جب کٹپتلی گھر جاتا ہے آپ کا نمائندہ وزیر اعظم بنے گا تو میں جانتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پاکستان میں جو پوٹینشل ہے ہمارے عوام میں، ہمارے نوجوان میں، ہمارا بزنس سیکٹر میں، ہمارا انڈسٹریل سیکٹر میں، ہمارا اپنا لوکیشن میں، ہمارا اپنے ریسورسز میں، انشاءاللہ تعالی ہم پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کٹپتلی نہیں، عوام کا نمائندہ چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہم محنت کرتے رہیں گے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے.